coming. Right? Now my voice is coming, everyone? Yes, because I was waiting for the other students. I have not started explanation. Okay. Now my voice is coming, right? सबको आ रही मेरी आवाज? And the screen is also visible. Yes. Give thumbs up so that I can understand that my voice is coming and the screen is also visible for all. Yes. Suman Kumari, Manshu Kushwaha, they just now entered in the class. How can I start? Okay. Corrosion of the metals, right? I am just going to start this topic, corrosion of the metals. What is the meaning of the corrosion? Have you ever listened before the rust? What is rust and rusting of the iron? Right? Actually, in the always in the term of iron, लोहे के केस में हम use करते हैं the word rust. Otherwise, there is a method, there is a process of corrosion only. Corrosion क्या होता है? जब किसी मेटल का जब हम उसका डिग्रेडिंग होता है, डिग्रेडिंग होता है यानी कि उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है किसी भी मेटल की, राइट, इन द रिएक्शन ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर, देन इट इज कॉल्ड corrosion. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द डेफिनेशन ऑल्सो. लेकिन इससे पहले आप ये बताइए, कभी आपने लोहे को जंग लगते हुए देखा है? यस, आई थिंक एवरीवन. आपकी साइकिल चेन में रस्ट लग जाती है, दैट इज कॉल्ड जंग. इन हिंदी इट इज कॉल्ड जंग एंड इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड रस्ट. एंड द प्रोसेस it is called rusting, right? So what is corrosion? What is the difference between the corrosion and the rusting? Actually, in the term of only iron, लोहे के केस में corrosion of metal को rusting कहते हैं, और बाकी सारे metal में जब degrading होती है तो हम उसको corrosion कहते हैं, right? I'm explaining again. लेकिन कभी आपने देखा होगा अपनी साइकिल की चेन पे या कोई भी लोहे की जो मेटल्स होते हैं, all these elements मेड ऑफ द आयरन, कोई भी चीज जो आपके आसपास नजर आती है लोहे से बनी हुई है, इट इज एक्सपोजर इन द एयर और एटमॉस्फेयर और मॉइस्चर, राइट? द ब्राउन लेयर विल कम ऑन द आयरन आर्टिकल्स, इट इज कॉल्ड रस्टिंग, राइट? वो ब्राउनिश लेयर ही रस्ट होती है. corrosion process with the metal corrodes, जब मेटल corrodes हो जाते हैं, corrode यानी कि उनकी स्ट्रेंथ डिग्रेड जाती है, वो उतने स्ट्रेंथ, क्योंकि मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, उनकी स्ट्रॉन्गनेस खत्म हो जाती है. corrosion is a process with metal corrodes. It is written in the book, so everyone purchase the book. corrosion is a natural process. ये नेचुरल प्रोसेस है एट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एटमॉस्फेयर. जब हमारी एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है वो मॉइस्ट होती है, जब वाटर वेपर ज्यादा प्रेजेंस होती है हमारे एटमॉस्फेयर की एयर में, राइट? So in the presence of the moist atmosphere, chemically active metals get corroded. Contrary on the popular belief that rusting and the corrosion are not same, but these are same. Only the word is different. All the metals corrode होते हैं, सारे almost all the metals corrode होते हैं, वो degrade होते हैं, right? In the presence of the moist atmosphere, हमारे एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर की वजह से और अदरवाइज किसी केमिकल की वजह से, राइट? लेकिन सारे मेटल कोरोड होते हैं. लेकिन इन द टर्म ऑफ आयरन, जब हम आयरन की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आयरन, लोहे की बात करते हैं, देन यही इसी कोरोजन को हम बोल देते हैं द रस्टिंग. रस्टिंग वर्ड यूज करते हैं केवल आयरन के लिए. रिमेंबर दिस पॉइंट, रस्टिंग टर्म इज रेफर्ड टू द आयरन.
रस्टिंग प्रोसेस केवल आयरन के लिए यूज होता है और बाकी सब मेटल्स के लिए कोरोजन वर्ड यूज होता है. रस्टिंग इज अ प्रोसेस where iron corrodes due to the exposure to the atmosphere. Right? I am telling you in the simple way. Right. Look at the screen. Corrosion of the metals. This is a definition. This is very simple definition of the corrosion of the metals. Metals में बहुत से metals आ जाते हैं. So the common definition of the corrosion of the metal is the degradation of the metal. Degradation of a metal by the action of air, moisture or acid is called corrosion. Right? या फिर मेटल की रिएक्शन एयर के साथ हो जाए, जो जिससे मॉइस्चर होता है एयर, राइट, ऑक्सीजन, एंड मॉइस्चर दैट इज वाटर वेपर, और अदरवाइज रिएक्शन विद द या एक्शन विद द एसिड, या किसी मेटल को किसी एसिड के अंदर रख दी जाए तो भी वो कोरोड्स हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उनकी स्ट्रॉन्गनेस कम हो जाती है, उन पे कोई एक लेयर और कोटिंग चढ़ जाती है जिसकी वजह से उनकी आउटर सरफेस चेंज हो जाती है. So this is corrosion. The simple definition of the corrosion of the metal is the degradation of the metal. You can take a screenshot because this definition is not in the book. The degradation of the metal by the action of air. Action of the air यानी कि air की oxygen. Right? Moisture. Moisture क्या हुआ? The water vapor that is present in the air. हमेशा water vapor present होती है air में. Sometimes in the small amount, sometimes in the more than amount, right? So moisture or acid is called corrosion. या एक्शन एयर का होगा या रिएक्शन विद द एयर होगी, मॉइस्चर होगा या किसी एसिड के साथ किसी मेटल की रिएक्शन होती है, then it gets corrodes and the method is called corrosion. Got it everyone? कोई भी एक लोहे की चीज ले लो या कोई भी और अदर मेटल ले लो, right? When they react with the air, moisture or acid, the metal gets corroded. It's called degradation of the metal. And the process is called corrosion. I think everyone got it, right? And what is the reaction of the corrosion? I told you the symbol of the iron is, who is going to tell me? Symbol of the iron is, symbol of the iron yesterday, yes, Fe, Tapanshi Jain, very good. GE nahi, Fe, yes, Arshit Singh, very good. Tapanshi has given the first, yes, सबसे पहले उसने आंसर दिया सुमन कुमारी, that is okay, Fe, right? Okay. और ऑक्सीजन का फॉर्मूला, ऑक्सीजन का सिंबल O2, the symbol, yes, O2. Now see the reaction. Now see the reaction. Iron is Fe. Iron का symbol Fe. So see the reaction. See the reaction. Everyone see the reaction. Don't see the balance. Coefficient को नहीं देखना है. आपको केवल ये देखना है कि Fe means iron. When reacts with the oxygen, atmosphere की जब ऑक्सीजन के साथ react करता है, Fe plus O2 and it forms Fe2O3, right? ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बनाता है. देन अगेन उसकी पानी के साथ या मॉइस्चर यानी कि वाटर वेपर के साथ जब रिएक्ट होती है, दोनों के साथ रिएक्शन होती है. बिकॉज अगर आप एक्सपोजर करते हो यानी खुली जगह पे आप कोई लोहे का या आयरन का बना हुआ मटेरियल या आर्टिकल कोई भी जो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज हो रहा हो, तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन भी होगी और एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी होगी, राइट? वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ, यस, H2O के फॉर्म में होगी, राइट? First, Fe iron gets react with the oxygen. It forms Fe2O3. This is reaction not in the code, but I am telling you, explaining कि कैसे होता है. Then Fe2O3 reacts with the hydrogen in the presence of moisture, in the presence of water vapor in the atmosphere. Then it rust हो जाता है. तब हमारा जो iron article है get rust. तो rust का जो formula है that is Fe2O3 dot XH2O. ये X क्या है? X is the number of water molecules. What is X? What is X? The number of molecules of water vapor. वो कुछ भी हो सकता है नंबर. क्यों? कभी कभी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो वाटर वेपर ज्यादा होता है, तो वो मेटल ज्यादा कोरोड होता है, राइट? उसमें ज्यादा रस्टिंग हो जाती है. तो इट डिपेंड ऑन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर.
दिस इज अ रिएक्शन जब मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है, राइट। तो यहाँ पर मेटल क्या है, Fe है, यानी कि हमारा आयरन। आयरन आर्टिकल जब रस्ट होता है, रस्टिंग होती है, द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। आई टोल्ड यू ये भी कोरोजन ही है, लेकिन केवल आयरन के टर्म में, इन द टर्म ऑफ आयरन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आयरन आर्टिकल्स, इट गेट रस्टिंग। तब कोरोजन वर्ड ना बोल करके हम क्या बोलेंगे, रस्टिंग होती है, उस पर एक ब्राउनिश लेयर सी चढ़ जाती है, राइट। हमारा जो आयरन आर्टिकल होता है उसमें एक ब्राउनिश लेयर सी चढ़ जाती है, तो वो क्या होती है, दैट इज वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, सराउंडिंग एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बनाता है। वो ब्राउन लेयर किसकी होती है, इसी की होती है, फेरस ऑक्साइड, राइट। यस, पहले हाइड्रोल, यस, इट इज हाइड्रेटेड आयरन होता है, उसके ब्राउन कलर की एक लेयर चढ़ जाती है, और पहले Fe2O3 बना, देन अगेन रिएक्ट्स विद द वाटर वेपर, राइट, देन इट फॉर्म्स अ हाइड्रेट आयरन, दैट द फॉर्मूला इज रस्ट। ये रस्ट का फॉर्मूला है। तो इन द चैप्टर ये क्वेश्चन या फॉर्मूला पूछा जा सकता है, यू हैव टू लर्न इट, Fe2O3 डॉट XH2O, दैट इज रस्ट। जो ब्राउनिश कलर की लोहे आर्टिकल पर जो लेयर चढ़ जाती है, जिसको हम जंग कहते हैं हिंदी में, उसका फॉर्मूला है, दैट इज रस्ट। वो रिएक्शन के बाद उस पर ब्राउनिश कलर की लेयर चढ़ती है, राइट। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। अब अदर मेटल्स की बात करें हम, इन द टर्म ऑफ आयरन इट इज कॉल्ड रस्टिंग। ये होता कोरोजन ऑफ मेटल ही है, लेकिन आयरन के केस में हमको क्या बोलते हैं, रस्टिंग। अदरवाइज डेफिनेशन क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ द मेटल। तो अदर मेटल्स की बात अगर हम करें, तो आयरन ऑब्जेक्ट तो ठीक है, मॉइस्चर और एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ लेकर के वो रिएक्ट करके उसे ब्राउनिश लेयर सी चढ़ जाती है, दैट इज ऑल्सो कोरोजन, बट इट द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग इन द टर्म ऑफ आयरन, ठीक है। अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर भी तो मेटल है, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक इन योर बुक इज कॉपर कोरोजन, आयरन कोरोजन, रस्टिंग, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड moist air, it means water vapor. Now कॉपर कोरोजन क्या होता है, कॉपर के जो मेटल्स होते हैं, कॉपर के जो यूटेंसिल्स बने होते हैं या कोई भी, यस, कोई भी आर्टिकल्स जो आर मेड ऑफ द कॉपर, जो कॉपर से मिलकर बने हैं, कोरोजन ऑफ मेटल्स ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉपर का कोरोजन पढ़ रहे हैं, कॉपर कोरोजन। तो ये भी क्या होता है कि इन द केस ऑफ कोरोजन ऑफ द मटेरियल्स मेड ऑफ द कॉपर एंड कॉपर एलॉय, जो कॉपर का बना हो या कॉपर एलॉय का बना हो। एंड व्हाट इज एलॉय, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द 7th क्लास। एलॉय क्या होते हैं, दो या दो से अधिक मेटल से बनी हुई मिक्सचर होता है, किसी एक मेटल नहीं, उसको कुछ किसी और मेटल की मिक्सिंग होती है। मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। व्हाट इज एलॉय, बिकॉज हियर द वर्ड इज केम कॉपर एलॉय। व्हाट इज अ कॉपर एलॉय, यानी कि कोई भी आर्टिकल जो कॉपर का बना हो या कॉपर एलॉय का बना हो, इट मीन्स उसमें ज्यादा परसेंटेज तो कॉपर की होगी। अदर मेटल का भी अगर कोई मिक्सचर ले लिया जाए तो वो कॉपर एलॉय कहलाता है। कॉपर यानी कि अदर मेटल की मिक्सिंग, और उसके बाद उसको कुछ बनाया जाए तो वो कॉपर एलॉय होगा। When exposed to the atmosphere, अगर कॉपर से बनी हुई कोई भी मटेरियल या कोई भी आर्टिकल जब वो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होता है तो कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज होता है एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन लेकर के। सेम इन द केस ऑफ आयरन, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है और कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी चमक चली जाती, कॉजिंग ब्राइट कॉपर सरफेस ऑफ द टर्निश टू ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। उसकी शाइनिंग खत्म होती जाती है, वो धीरे धीरे रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है, ग्रीनिश कलर की लेयर चढ़ जाती है। हैव यू सीन एवर इन द होम, कोई भी कॉपर का आपके पास, आपके यूटेंसिल्स हो, कोई भी आर्टिकल हो जो कॉपर का है, कॉपर के एलॉय से बना हो, तो उसमें ग्रीन कलर की वो हो जाती है, लेयर चढ़ जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। जब वो एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर के साथ, तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और अदर चीजों के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो जो कॉपर मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, कॉपर मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है,
जिसकी वजह से उसकी शाइनिंग चली जाती है, एंड कुछ टाइम बाद या कुछ सालों बाद वो टर्निश ग्रीन कलर का होता है. ग्रेजुअली इट विल चेंज द कलर. टर्निश ग्रेजुअली चेंज टू द डार्क ब्राउन कलर, देन ब्लैक, और फाइनली टू द ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है धीरे धीरे रेड करके. कोई भी कॉपर वेसल हो या कोई भी आर्टिकल हो, ठीक है. सो ये कॉपर का मेटल एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाता है, एंड उसकी शाइनिंग खत्म हो जाती है, और ग्रेजुअली इट टर्न्स टू द डार्क ब्राउन, ब्लैक, और फाइनली इट्स टर्न टू द ग्रीन कलर. ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है. तो ये भी क्या है? कोरोजन ऑफ द कॉपर है, राइट. डिग्रेडेशन ऑफ द मेटल. ठीक है. अब हम देखते हैं कि सिल्वर कोरोजन क्या होता है. सिल्वर कोरोजन आपकी बुक में लिखा हुआ है, सी द स्क्रीन. Here it is. Silver corrosion, right? Silver is also a metal. Silver भी corrode होता है, उसमें भी corrosion होता है. Silver is a grey white metal that is malleable and soft. बहुत सॉफ्ट होता है और मेलेबल होता है. उसको बीट करके हम एक पतली सी शीट भी बना सकते हैं. दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट. सिल्वर मेटल है और मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसको बीट करके हम एक पतली सी थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. So it is malleable and soft. The metal is found in the lead ore, but can also be byproduct of the mining other metals like gold, copper, and zinc also, right? ये भी precious होता है like a gold, right? ये भी एक बहुत अनमोल चीज. मतलब silver is also a cost इसकी बहुत high होती है, not compared to the gold and platinum, right? But it is also a best conductor of the electricity of the all metals, right? Like the other metals. See, metals की ये भी एक property होती है, because silver is also a good conductor of electricity. ठीक है. तो सिल्वर इज ऑल्सो अटैक्ड बाय द सल्फर और अदर केमिकल रिएक्शन होती है, वो भी कोरोड होते हैं, और वो भी मेटल भी क्या हो जाते हैं धीरे धीरे धीरे. सिल्वर मेटल भी क्या हो जाती है? ब्लैक पड़ जाती है. चांदी की चीजें ब्लैक पड़ जाती है ना, ब्राउन ब्लैक हो जाती है. इज ऑल्सो रिएक्ट विद द सल्फर एंड समटाइम्स केमिकल रिएक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी शाइनिंग खो देते हैं वो लोग, राइट. अब मेन टॉपिक आता है प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन. तो ये मेटल्स का जो कोरोजन होता है, डिग्रेडेशन होता है, उसको रोक कैसे सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन. ठीक है. प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम. कोरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं? देयर आर सम प्रोसेस, सम मेथड्स टू प्रिवेंटिंग ऑफ द कोरोजन. कोरोजन को रोकने के लिए बहुत सारे मेथड्स से बहुत से तरीके अपनाते हैं हम लोग, राइट. तो वन बाय वन वी विल लर्न और डिस्कस एंड एक्सप्लेनिंग. हम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि उसका डिग्रेडेशन नहीं, मेटल्स का डिग्रेडेशन ना हो और उनकी शाइनिंग ना खोए, राइट. क्योंकि अगर लोहे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आयरन मेटल्स, तो उनका डिग्रेडेशन होता है तो क्या होता है? लोहा उतना मजबूत नहीं रह जाता है, राइट. उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं रहती है जितनी की पहले होती है. तो हम लोग उसकी स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए, क्योंकि फिर वो आयरन आर्टिकल बिल्कुल फिनिश हो जाता है, धीरे धीरे उससे ब्राउन कलर की रस्टिंग होती जाती है और वो आयरन अपनी स्ट्रेंथ खो देता है, उतना मजबूत नहीं रहता है. तो हमें उसकी प्रिवेंशन करने, हम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. सो अनदर वे ऑफ द प्रोटेक्टिंग आयरन एंड स्टील इज बाय पेंटिंग. या उसको पेंट कर दें, राइट. उन पर एक पेंट कर दें ऑन दैम. इट क्रिएट्स अ बैरियर. ये पेंट क्या होगा? वो एक बैरियर का काम करता है. क्यों? क्योंकि अगर सिंपल आयरन है जिस पर अगर पेंट नहीं किया है, तो वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और मॉइस्चर लेकर के रिएक्ट करता रहेगा, राइट. क्योंकि एक्सपोज होता रहेगा और एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके रस्टिंग होती रहेगी. तो अगर आप पेंट कर देते हो, तो पेंट करने से क्या होता है? इट क्रिएट्स अ बैरियर. एक बैरियर बन जाता है बिटवीन द सरफेस ऑफ द मेटल एंड द मॉइस्ट एयर ऑफ द और वाटर. पानी से या मॉइस्चर से या एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के बीच में और मेटल की सरफेस के बीच में एक बैरियर आ जाता है. ठीक है. इफ यू जस्ट गेट पेंट द आयरन आर्टिकल, तो उसकी वजह से क्या होगा? ये प्रोटेक्शन मिलेगा उसको, और वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और पानी के साथ वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, और रस्टिंग से प्रिवेंशन हो जाएगा. Whereas the other methods of the protecting of the metal are alloying, galvanization, electroplating, etc.
दीज आर गिवन इन द बुक ऑल्सो। तो केवल पेंटिंग के अलावा और भी मेथड है जिससे हम जो है उसको हम रोक सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि रस्टिंग और कोरोजन ना हो। एलॉइंग है एक मेथड, गैल्वेनाइजेशन है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पेंटिंग इज अ डिफरेंट थिंग, उसको पेंट कर दिया, पेंट से भी इतनी जल्दी ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। See the other methods. An alloy is a mixture of the two or more metal. Just now we have already discussed and I told you what is alloy. Alloy क्या होता है? Mixture होता है two or more metals का। तो दो या दो से अधिक मेटल का जब मिक्सचर होता है उसको मेल्टन फॉर्म में, अब आप बोलोगे मेटल कैसे मिक्स हो गया? मिक्सचर ऑफ द टू मेटल्स। तो क्या होता है, दो मेटल्स को मेल्ट या मोल्टन फॉर्म में लिया जाता है और उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है और सॉलिडिफाई किया जाता है। तो फिर जब वो सॉलिडिफाई होकर सॉलिड बन करके जब सॉलिड बनता है तो वो दो मेटल्स का एक मिक्सचर होता है, राइट। अब वो कितनी परसेंटेज ले रहे एक मेटल की और दूसरी मेटल का, डिपेंड्स ऑन। बट व्हाट इज एलॉय? एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। इसे नॉन मेटल भी लिया जा सकता है, यू कैन टेक अ मेटल और नॉन मेटल ऑल्सो। बट वो एलॉय क्या होता है? व्हाट इज एलॉय? इट्स अ मिक्सचर ऑफ द टू और मोर मेटल्स। दो या दो से अधिक मेटल्स को मिक्स करके जो एक नया मेटल बनाया जाता है, दैट इज एलॉय। हम आयरन का भी एलॉय ले सकते हैं और कॉपर का भी एलॉय ले सकते हैं, अदर मेटल्स का भी एलॉय ले सकते हैं। एलॉइंग इज अ प्रोसेस Alloying is a process where metals like iron or steel are the mixed with the less reactive metal like chromium, magnesium, etc. For protection के लिए हम against the corrosion, हम corrosion के against protection के लिए हम क्या करते हैं? To create a non-rusting alloy बनाते हैं ताकि इसमें rust ना करे, rusting ना हो। For example, brass ले लिया, brass is an alloy which consists of the copper एंड इज द चीप और बहुत सस्ता भी होता है और नॉन रिएक्टिव एलॉय होता है, इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन की, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ। क्या? ब्रासो बोलते हैं। ब्रास इज एन एलॉय विच कंसिस्ट ऑफ द कॉपर एंड इज द चीप एंड नॉन रिएक्टिव एलॉय होता है, राइट, जिसकी वजह से कोरोजन रोका जा सकता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ द नॉन रस्टिंग एलॉय इज द स्टेनलेस स्टील, जो आप स्टील के बर्तन यूज करते हो घरों में, that is also a non-rusting alloy. इसमें रस्ट चढ़ती है क्या स्टेनलेस स्टील में? नहीं ना। तो ये मिक्सचर होता है। स्टील किससे बनाया जाता है? स्टील इज एलॉय। स्टेनलेस स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ द आयरन एंड कार्बन। आयरन में थोड़ा सा कार्बन मिक्स कर दिया जाता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। आयरन मेटल में जब कार्बन को मिक्स किया जाता है तो स्टेनलेस स्टील बनता है एंड दैट इज अ नॉन रस्टिंग एलॉय। इट इज अ नॉन रस्टिंग एलॉय। स्टेनलेस स्टील जो आप यूज करते हो, जो स्टील मेटल यूज करते हो, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ द आयरन एंड कार्बन। आयरन में थोड़ा सा कार्बन मिक्स कर दिया जाता है और स्टील बना दिया जाता है, राइट, एंड दिस इज नॉन रस्टिंग एलॉय। तो ये हुआ, दैट इज अ मेथड। वन मेथड इज पेंटिंग एंड द सेकंड मेथड इज एलॉइंग, जिसमें हम किसी और मेटल को मिक्स करके एलॉय बनाते हैं और हम उसको प्रोटेक्शन देते हैं कि रस्टिंग ना हो, राइट, उसको नॉन रस्टिंग एलॉय बनाते हैं। That is a second method. Now that galvanization. Galvanization क्या होता है? Wait, I am telling you. Galvanization. Galvanization is also a coating of iron surface with the zinc. Galvanization एक प्रोसेस है जिसमें हम आयरन आर्टिकल को हम किससे कोट कर देते हैं? आयरन सरफेस को किससे कोट करते थे? जिंक मेटल से। जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं। कभी आपने देखा होगा कि ऊपर छतों में हम लोग टिन मतलब कुछ ऐसा लगा देते हैं, सरफेस ही लगा देते हैं हम लोग, तो वो क्या होता है? वो आयरन होता है, उससे जिंक की एक मेटल लेयर चढ़ जाती है। केवल किसके लिए? रोकने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन, वी हैव टू डू दिस। कोटिंग ऑफ आयरन और स्टील विद द जिंक, या आयरन और स्टील दोनों को ही हम जिंक से कोट कर सकते हैं, एक लेयर चढ़ा देते हैं, उसकी कोटिंग कर देते हैं, जिससे प्रिवेंशन हो जाता है कोरोजन का। सो कोटिंग ऑफ आयरन और स्टील विद द जिंक टू प्रिवेंट कोरोजन इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग द आयरन सरफेस विद द जिंक। जिंक इज ऑल्सो तो इससे क्या होता है? प्रोटेक्शन मिल जाता है,
ठीक है, so this is galvanization. जिंक ऑक्साइड बन जाता है और वो क्या करता है, कोरोशन से उसको रोक देता है, राइट. दिस इज वेरी सिंपल. सो नेक्स्ट इज, यस, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रो वर्ड लगा है, इट मीन्स इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, राइट. एवरीवन इज गेटिंग, टाइम इज आउट रनिंग. तो 5 मिनट में मैं आपसे प्रॉब्लम पूछूंगी, सबको समझ में आ रहा है, राइट. एंड माई वॉइस इज ऑल्सो कमिंग. देव, यस मैम, ठीक है. एंड रीड इट, अगर इफ यू हैव द बुक, अगर स्टूडेंट के पास बुक है तो क्या करेंगे, ओनली आउट करेंगे 2-3 टाइम्स. अदरवाइज इफ यू हैव अ प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी टू. लेट मी चेक एनी अदर. यस, नो. Okay, come on the screen now. Again, I am just come back my topic. मैं वापस आती हूँ अपने टॉपिक पे. इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? सीधा हेडिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग is the process where the metal is coated by the electrolytes deposition with the chromium, silver or another metal. हम क्या करते हैं, हम इसको एक लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम लोग उसको इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिशन करते हैं क्रोमियम और सिल्वर के जरिए, या अदर मेटल भी ले सकते हैं. दिस प्रोसेस इज जनरली हेल्ड एट द रूम टेम्परेचर. यस, फॉर्म द एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स. पानी लेते हैं और 2 इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं. इट इज नॉट इन योर कोर्स. इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको 9 से मिलेगा. इसका कैसे मेथड होता है आई विल एक्सप्लेन, बट आई एम नॉट शोइंग एनी पिक्चर ऑफ दैट. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, एक एक्वस पानी भर दिया जाता है एक बीकर में और इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं हम लोग, राइट. और उस पर क्या होता है, डिपोजिशन चलता जाता है. जिस मेटल को हमें कोरोजन से रोकना होता है सिंपली, तो हम क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं और क्या होता है, उस पे उस जो सोल्यूशन भरा है हमने उस बीकर में, उसका जो अदर मेटल है वो आयरन आर्टिकल पे डिपोजिशन होता जाता है, जिसकी वजह से आयरन की सरफेस से किसी और मेटल का, जैसे क्रोमियम का या सिल्वर पे हम किसी और का डिपोजिशन करते जाते हैं, तो क्या होता है, वो करोजन से या रस्टिंग से प्रिवेंशन मिल जाता है. दिस प्रोसेस जनरली हेल्ड इन द रूम टेम्परेचर पे किया जाता है और बहुत ही पॉपुलर है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमन मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन. ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है कोरोजन को रोकने के लिए. क्या होता है, किसी और पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हम इलेक्ट्रोलाइट्स बना करके हम लोग क्या करते हैं, हम किसी जिस मेटल को कोरोजन से रोकना होता है, हम किसी और मेटल की उस पर परत चढ़ाते जाते हैं. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट. किसी और की लेयर चढ़ाते जाते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट. जिस मेटल को भी हमें कोरोजन से रोकना होता है और हम दूसरे मेटल का जिसको उसको बैरियर चढ़ाना है, जिसको कोरोजन से रोकना है, तो हम क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा करके अदर मेटल की उस पर कोटिंग यानी लेयर चढ़ती जाती है, प्लेटिंग होती जाती है, उस पर प्लेटिंग होती जाती है, राइट. तो वो मेटल जो है कोरोजन से रुक जाता है क्योंकि उससे अदर मेटल की प्लेटिंग हो गई है, राइट. जैसे हम लोग कभी बोलते नहीं है कि सिल्वर की चीज है लेकिन उसमें गोल्ड की पॉलिश होती है, लाइक ऐसा बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, राइट. दिस इज अ वेरी कॉमन मेथड टू प्रिवेंट द कोरोजन. नाउ टाइम तो होने वाला है, तो इससे पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं. दैट ओनली 2 टॉपिक्स आर वेरी लेफ्ट. बहुत ही इजी है. यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हम कहाँ यूज करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स? यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो यूजेस ऑफ मेटल्स जो है बहुत जगह आपको मालूम है मेटल्स का कितनी जगह यूज होता है. आप चारों तरफ देखिए मेटल ही मेटल है आपका. हम लोग बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, ज्वेलरी के बनाने में यूज करते हैं, समटाइम्स क्लोथिंग में यूज करते हैं, राइट. क्लोथ में भी तो आप कुछ लगाते हो. That is also, yes, we can use the metal also in clothing to decorate the clothing, jewelry making में, right, machinery में, automobiles में,
फार्मिंग में यूज करते हैं, कुकिंग में यूज करते हैं, राइट। ये सारे मेथड, ये सारी चीजें जो है जहाँ जहाँ पर हम मेथड्स को यूज करते हैं। इवन इन द मेडिसिन, मेडिसिन में भी हम यूज करते हैं, राइट। हम कभी कई बार यस अमोनिया को, अनीमिया पेशेंट्स को हम यूज करते हैं। इट इज यूज एज अ फेरस सल्फेट को यूज करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ मेटल टू क्योर सम फॉर्म ऑफ एनीमिया। इट इज रिटन इन द बुक। तो हम मेडिसिन को बनाने में समटाइम्स यूज करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ज्वेलरी, क्लोथिंग, ऑटोमोबाइल्स, फार्मिंग में यूज करते हैं मेटल का। फिर फार्मिंग में जितने भी हम आर्टिकल यूज करते हैं, कुछ भी जो हम फार्मिंग में यूज करते हैं, फार्मिंग जो टूल्स होते हैं, राइट, सॉइल को कटिंग करने के लिए, प्लांट करने के लिए, सीड को प्लांट करने के लिए, पूरी फार्मिंग में जितने भी टूल्स यूज होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ द मेटल्स। कुकिंग में यूज करते हैं, दीज आर द यूजेस ऑफ मेटल। चलिए, now I can ask the question. Yes, any problem, any query you can ask, raise your hands. I just, मैं one by one पूछूंगी, raise your hands. Ayush, any problem? Raise your hand those who are having a problem. Suman Kumari. Yes. Yes, Suman. मैम मैम Yes, बोलो। मैम मेडिसिन में कैसे यूज हो जाता है मेटल? Medicine, you have a book? यस मैम। Okay. क्योंकि अभी बहुत ही शॉर्ट टाइम है, I cannot explain. Tomorrow I can explain because one more topic is left. Uses of non-metal is also left, right? ओके मैम, ओके मैम। बहुत ही थोड़े अमाउंट में यूज होता है, बट इट इज यूज, राइट। हमारे ब्लड में, सुमन कुमारी, हमारे ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड है, तो ब्लड में क्या होता है? आयरन होता है। हम बोलते हैं ना हीमोग्लोबिन लो है तो हमें आयरन वाली चीजें लेनी चाहिए जिससे आयरन है। तो आयरन इज अ मेटल, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में होता है, बट यू कैन टेक इट। यस, एनी प्रॉब्लम एट ऑल? नैना, कार्तिक, देव, दीपक, नैना, पास, पावनी, एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, आई कैन अनम्यूट यू। मैं आपको यस किसी को प्रॉब्लम है, रेज योर हैंड, मैं उसको म्यूट अनम्यूट करके उससे पूछ सकती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी सुमित चौधरी, किसी को प्रॉब्लम है? समझ में आया? एलॉइंग, रस्टिंग, कोरोजन, गैल्वेनाइजेशन, एनीथिंग? नो प्रॉब्लम एट ऑल? वेरी गुड क्लास, आई अंडरस्टूड कंप्लीटली। नैना चौधरी, वेरी गुड नैना। सुमन कुमारी इज आस्किंग कि मेडिसिन में कैसे यूज होता है। मेडिसिन में कैसे यूज होता है? सुमन कुमारी, आई एम निशु मैम, व्हाट इज? यस, तो सुमन कुमारी नाम से तो रीनेम इट। निशु, इट इज रीनेम करो। मुझे लगा, आई थॉट देयर इज अ न्यू एडमिशन, so rename it with the Nishu, right? Okay, इसको rename कर दीजिए। I will not, otherwise I can remove from the class. Nishu, you have to rename it. Rename कर दीजिए। Any problem at all पूछ सकते हैं आप। Because time is over now. Okay, tomorrow we will discuss the leftover topic, uses of non-metals, no problem at all, Shashi Gupta. Okay, very good. Okay, ठीक है, चलिए। Rest of the topic, only one topic is left, uses of non-metals, right? Uses of non-metals. Uses of non-metals भी देख लीजिए, you can take a screenshot. Purification of water में यूज किया जाता है, synthesize of the chemicals, synthesize करते हैं केमिकल बनाने में, फर्टिलाइजेशन में, पेस्टिसाइड में।